Hi guys, welcome back to Insight Assist YouTube channel. I am Vaishalli, and as you know that UPSC has already declared that CDS registrations are now open. I hope being a defense aspirant you understand how crucial this time is for everyone. Be that you have been preparing since past 6 to 7 months or you are planning to start up with the preparation. These last 2 to 3 months actually predominantly decide whether you will clear the examination or not, or somebody is going to push you out of the race so as to make sure that the limited seats are there, they get it. Okay, so if you don't want to be pushed out of this race, let me tell you one thing, that with time your strategy should change. You should understand that there are certain topics that are very important and you should start preparing according to the demand of the examination. And if you don't do that, in last 2 to 3 months you will have a very good probability to fail even if you work very hard. As you know that Insight SSB is quite famous for its smart study techniques, and because of this lot of students who couldn't even get 50% marks, when we talk about the cutoff ke 50% bhi nahi aate the, these students have cleared the examination by just following the smart study technique that we discuss. So let us understand that what is the requirement of last 2 to 3 months, but you have to promise me one thing, that you watch this video till the end, because I'll be giving you very minute details in between this very video also in the end, and if you miss anything that may backlash. So we will start this video with a very nice story which will basically remind you of your school days, and hence is very valuable to understand how to clear this examination in last 2 to 3 months. So guys, let us jump right into the video now and let's begin with the story. So now, talking about the story, you must have heard this very famous story in which there was a tortoise and a rabbit. Rabbit kept sleeping and tortoise won the race. Even though rabbit जो था वो ज़्यादा talented भी था, ठीक है, उसमें ज़्यादा skills भी थे, and वो आराम से race win कर सकता था. It's okay if you had been like this sleeping rabbit. It's completely fine even though tortoise almost यहाँ होता, which we can consider कि वो 3 महीने पहले की बात है या 2 महीने पहले की बात है. अगर इस टाइम पे भी रैबिट की जो है नींद खुल जाती तो आई गेस ही मस्ट हैव वन दिस रेस. सो सेम इज द कंडीशन विद यू. लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस पास्ट 6 to 7 months. बहुत प्रिपेयर भी कर रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. बट I will give you that strategy which will help you to win this very race for sure. So let's start up with the thing. Let's strategize our preparation so that we crack CDS 2 2021 for sure. Now coming to this strategy, the issue with you guys is that you start fighting with the examination. What I mean to say is you have this very myth in your head कि आपको जैसे बोर्ड्स एग्जाम में होता था ना 95% मार्क्स लाने हैं, 90% मार्क्स लाने हैं. आई गेट लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स कमिंग टू मी एंड दे से मैम मैंने इतना सब पढ़ लिया है बट मेरे से तो सिर्फ 60% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पा रहे हैं. आई एम नॉट एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन. नाउ प्लीज टेल मी वन थिंग, यूपीएससी एक तो एग्जाम आपका प्रिपेयर कर रहा है, दूसरी बात सिलेबस इतना वास्ट है, तीसरी बात इतने सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं. डू यू थिंक कि 60% मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है व्हेन इट कम्स टू जीएस विच इंक्लूड 60 मार्क्स आउट ऑफ 100? दैट्स कंप्लीटली ह्यूज गाइज. सो आपके साथ क्या इशू है दैट यू स्टार्ट फाइटिंग विद द एग्जाम कि इसमें तो मुझे इतना स्कोर करना ही है, जबकि आप ये अंडरस्टैंड नहीं करते और ये एनालाइज नहीं करते हैं दैट व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन. डिमांड इस एग्जामिनेशन की सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप 40 to 45 मार्क्स भी लेके आ रहे हैं आउट ऑफ 100, जो ऑलमोस्ट टॉपर्स लेके आते हैं, यू गो एंड चेक द रैंक्स, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, they hardly get 45-40 marks in the GS section and you are getting almost equivalent to them. So guys, please understand कि आपका जो fight है इस examination के अंदर, that is with other people. जो और सब लोगों को आता है वो आपको 100% आना चाहिए, और जो उन्हें नहीं आता अगर वो आपको नहीं भी आता है सो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. ओके, नाउ आई विल टेल यू दैट यू नीड टू स्ट्रैटेजाइज इन अ वे कि आप सिर्फ उतना पढ़ें कि आप उन 100 क्वेश्चंस में से ये डिसाइड कर पाएँ कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स अपने प्रिपेयर करने हैं दैट आई कैन सिक्योर एटलीस्ट 40 to 45 मार्क्स. बिकॉज अगर मैं इतने मार्क्स जीएस में लेके आता हूँ, इसके साथ साथ अगर इंग्लिश में आई एम एबल टू
स्कोर अराउंड 75 to 80 मार्क्स, जो कि टफ एग्जाम्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ. लास्ट टाइम कट ऑफ वॉज डाउन बिकॉज एग्जाम वॉज वेरी वेरी ईजी. उसमें तो 50 मार्क्स स्कोर करना भी बहुत बड़ी बात नहीं थी. ओके, सो इन दैट केस अगर टफ भी रहता है, दिस इज वेरी मच डूएबल स्कोर. ओके, एंड दिस टाइम देर इज वेरी गुड चांस कि आपकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी ड्रॉप होने वाली है. आई एम टेलिंग यू दिस वेल इन एडवांस. आपका इस बार एग्जाम टफ आएगा. सो टेक दिस थिंग इन योर हेड कि आप 40 to 45 का अपने दिमाग में एक एम बना के चले, एंड दैट इज वॉट वी हैव टू प्लान. फाइन. Now moving to the main thing, there are certain questions जैसे मैंने आपको बताया that you should know. Okay, you should know in the sense ये questions ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा predictable हैं और 100% आने ही आने हैं. What are these questions? There are certain type of questions जो आपको पता चलते हैं once you go through previous year questions that 100% आपसे स्कीम पूछी जानी है. आपसे जो question है related to fundamental rights आना ही आना है. एंड आप क्या करते हैं, ये 10 से 12 जो हाईली प्रोडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं हर सेक्शन में से, इनको आप छोड़ के उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं जो आपको नहीं आते होते. और इस रीज़न की वजह से आप जो हैं अपनी स्ट्रैटेजी खराब करते हैं. आपको जो आता है, मीन्स इफ़ यू नो कि फंडामेंटल राइट आने ही आने हैं, आप इनको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे एंड जाके वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे. ओ माय गॉड, इसका आंसर आर्टिकल 16 था या आर्टिकल 14 था. आई एम नॉट एबल टू एनालाइज क्या था इसका आंसर. वाई? बिकॉज रिविजन तो करी ही नहीं. आपको लिमिटेड पढ़ना है. लिमिटेड इन द सेंस प्रीवियस ईयर्स उठाओ, ट्राई एंड एनालाइज कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक्स चेक करो. मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्कीम्स, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, गांधीयन एरा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. आजकल तो देर आर सर्टेन एरियाज जहाँ से 100% क्वेश्चन आने ही आने. साइंस तो इतना प्रोडिक्टेबल है कि वहाँ पता है किस सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे और वहीं से ही रिपीट होंगे. ठीक है, सो लिमिटेड पढ़ो लेकिन उसको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं किया तो एग्जाम में कुछ भी याद नहीं रहेगा. सिंगल सोर्स जाओ, ठीक है, रिविजन्स करो, लिमिटेड पढ़ो. एक फिर ऐसा सेक्शन होता है जिनको आपको छोड़ना होता है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैंने बोला जो किसी को नहीं आते होते और वो रैंडमली कहीं से भी पिक्ड आउट क्वेश्चंस होते हैं. वो क्वेश्चन डिज़ाइन ही इसलिए किए जाते हैं क्योंकि पहली बात ये यूपीएससी है, तो अपना उसे लेवल मेंटेन करके रखना है कि वो आपको डराए और बोले ओ माई गॉड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम. बट आप इतने डम एक्ट करते हैं दैट यू इवन प्लान कि मुझे ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं. हाउ डेयर दिस क्वेश्चन स्टे अनआंसर्ड बाय अ इंटेलिजेंट पर्सन लाइक मी. ठीक है, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है. वी हैव टू प्ले वेरी स्मार्ट. वी हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्टिक्स ऑफ यूपीएससी कि वो सिर्फ इन क्वेश्चंस के थ्रू डराता है एंड ये क्वेश्चन सिर्फ छोड़ने के लिए बने हैं. लेकिन अगर इस जगह मैं होती, मुझे ये क्वेश्चन सीरियसली बताऊं बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन मैं ये क्वेश्चन फिर भी सही करके आ सकती हूँ बाय इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक्स. So there is basically intelligent guessing technique in UPSC एग्जाम जो प्रॉपरली 10 साल के प्रीवियस ईयर एनालाइज कर चुका है. उसे बहुत ढंग से पता है कि यूपीएससी के आंसर्स को कैसे एनालाइज करना है, क्योंकि एक फॉलो करता है ये ट्रेंड. ओके, सो इंटेलिजेंट गेसिंग टेक्निक, दिस इज समथिंग आई टीच टू माई स्टूडेंट्स. स्पेसिफिकली ये जब की जा सकती है जब पहली बात तो आपका सिलेबस खत्म हो गया हो. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज अ प्रायोरिटी. सेकेंड थिंग इज दैट यू शुड नो कि व्हाट पैटर्न जो यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं वो क्या पैटर्न फॉलो करते हैं. जैसे कि आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट अवे. कभी भी जो डेट्स होती हैं, ठीक है, वो यूपीएससी यूजुअली गलत नहीं देता है. आई एम सेइंग यूजुअली बिकॉज एक दो सेक्शन हो सकते हैं जहां पर ऐसा हो कि गलत हो, बट यूजुअली डेट कभी भी यूपीएससी के किसी भी क्वेश्चन पेपर, चाहे एनडीए, सीडीए, सीएपीएफ हो, कभी भी डेट्स गलत नहीं होती है. दूसरी चीज़, कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हो वो हमेशा गलत होती ही होती हैं. जैसे कि वील टॉक अबाउट दिस वेरी क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल नहीं आता दैट इंडियन मेडिकल सर्विस जो है, ब्रिटिश इंडियन मेडिकल सर्विस कब स्टार्ट हुई थी, क्या था, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. बट एज आई सेड, ईयर कभी यूजुअली गलत नहीं देगा, तो ये सही होगी. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इट रिक्रूटेड हेल्थ प्रोफेशनल बाय मीन्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो यू शुड नो दिस थिंग कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, देर आर गुड चांसेस. लेकिन ऑफकोर्स अगर इतने हाई लेवल की बात है तो एग्जाम्स होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं बिकॉज कॉम्पिटिटर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन,
इंडियंस वर नेवर एडमिटेड टू IMS। अब ये क्या है, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कभी भी नहीं, ऐसा तो नहीं है। इवन इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर भी ऐड हुए थे लेटर ऑन स्टेजेस में, ठीक है। जो पार्लियामेंट बनाई गई थी, सेंटर था, स्टेट लेजिस्लेचर था, हर जगह पे इंडियंस का लेटर ऑन इंक्लूजन हुआ था। वाई? बिकॉज दे हैव टू कीप सर्टन पीपल फ्रॉम इंडियंस ऑल्सो, ताकि वो स्टेबल रख सके चीज़ों को। तो ये तो एक बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई। इज इट पॉसिबल? नहीं, इस पर मुझे थोड़ा डाउट हुआ। नेक्स्ट वन बीइंग दैट IMS वॉज फर्स्ट मेंट टू लुक आफ्टर द ट्रूप्स। अब ये स्टेटमेंट काफ़ी कुछ सही हो सकते हैं, बिकॉज अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करी थी इस देश के अंदर जो कि स्पेसिफिकली उनका जो राजपाट था उसको बढ़ाने के लिए यूज़ हुई थी। तो येस, दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू। तो मैं इस जगह पर एक काफ़ी अच्छा गेस लगा सकती हूँ दैट इसके चांसेस हैं कि आंसर सी हो। सो दिस इज़ नोन एज इंटेलिजेंट गेसिंग, और इसमें से यूजुअली 80% आपके जो आंसर्स होते हैं वो सही निकलते हैं। और UPSC एक ट्रेंड फॉलो करता है। दिस आई यूजुअली डिस्कस वंस माई स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर सिलेबस एंड देयर आफ्टर वंस दे स्टार्ट विद फुल लेंथ टेस्ट एंड ऑल, दिस इज वन ऑफ द सेशन दैट आई यूजुअली टेक फॉर देम। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इफ यू नो 1 or 2 आउट ऑफ देम यू कैन इजीली गेस इट, ठीक है। और अगर नहीं आते तो ये छोड़ दो, डोंट एक्ट डम बाय डूइंग दीज क्वेश्चंस। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हमें, एक होते हैं जो आने ही चाहिए, व्हाई? बिकॉज दोज टॉपिक्स आर रिपीटेड। दूसरे टाइप के ऐसे होते हैं जो छोड़ने के लिए ही बने होते हैं, और इन क्वेश्चंस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ यहाँ पे इंटेलिजेंट गेस वर्क लगाएंगे, बिकॉज दीज सेक्शंस आर नॉट मेंट फॉर अस। ओके, now let us talk about excelling our strengths. Now what does this thing mean? अब आप सब लोग मुझे एक बात बताइए दैट आप सबका जो बैकग्राउंड है दैट इज क्वाइट डिफरेंट। वाई आई से दिस थिंग? समबडी मस्ट बी फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, कुछ आप में से साइंस बैकग्राउंड से होंगे एंड कुछ होंगे आर्ट्स बैकग्राउंड से, बिकॉज ऑफकोर्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप सब देते जो भी ग्रेजुएट्स हैं। नाउ ईच वन आउट ऑफ यू हैज सर्टन सब्जेक्ट्स जो उनकी स्ट्रेंथ है। ओके, now talking about science वाले students, they will do very well certain subjects which includes physics, chemistry, biology. arts वालों की history, geography, polity काफ़ी अच्छी होगी, and जो commerce वाले students हैं इनका usually economics section काफ़ी अच्छा area रहता है, isn't it? Now as we talk about these 3 type of people, आप सबकी कुछ ना कुछ strengths हैं, उनको यूटिलाइज करो। अगर आपको ये बात पता है कि आपका बैकग्राउंड कुछ साइंस से रिलेटेड है, सो व्हाई डोंट यू फोकस योर सेल्फ इनटू साइंस? आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से, व्हाई डू यू रश टूवर्ड्स सब्जेक्ट लाइक साइंस जहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आता है? आप मुझे एक बात बताइए, जो सिलेबस है वो काफ़ी हाई लेवल का है, 11th एंड 12th तक के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी होलिस्टिकली, नॉट ओनली 11th एंड 12th बट ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटी एटसेट्रा, ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लाइक इफ यू टॉक अबाउट लक्ष्मीकांत, दैट इज नॉट अ बेसिक बुक, 11th 12th में वो चीज़ें कवर्ड नहीं है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस थिंग? एक सीधी सी बात है, इज इट पॉसिबल कि आप अपना इतना ह्यूज सिलेबस जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कवर कर ले इतने छोटे से स्पैन एंड टाइम में? नॉट पॉसिबल। हमें क्या करना है, अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जैसे अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट के एक भी क्वेश्चन को बर्बाद नहीं जाने दूंगी अनटिल अनलेस वो बहुत वेग सा क्वेश्चन है जो यूजुअली बच्चों को नहीं आएगा। सो माय मेन फोकस इज कि मुझे अपने, अगर जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे ऑलमोस्ट 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस होना चाहिए आउट ऑफ दीज 25 to 30 क्वेश्चन मैं ये 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आऊंगी। कमिंग टू द सेकंड थिंग, करंट अफेयर्स हाईली प्रिडिक्टेबल है, कहाँ से आती है, एंड आई ऑलवेज कवर दिस ऑन इनसाइट इस यूट्यूब चैनल, प्लीज फॉलो कर लेना। सारे पार्ट्स डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इसकी मैं श्योरिटी दे देती हूँ कि 9 से 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं आपके कवर करा के छोड़ूंगी एंड उसी में से ही आएंगे, ठीक है। तो अनदर 9 to 10 क्वेश्चन कवर्ड फ्रॉम हियर। बचे कितने क्वेश्चंस आपके? हार्डली आपको 20-25 क्वेश्चन और ढंग से अच्छे से आने चाहिए। अब उनको आप डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करोगे? मैंने आपको बताया पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं आपकी। सो देन डू दीज टॉपिक्स, ओके, एंड आप उसमें से ओमिट आउट कर दो एक सब्जेक्ट। जैसे कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, इकोनॉमिक्स कंप्लीटली ओमिट आउट कर दो, आपको नहीं आएगी समझ, आई गारंटी यू दिस थिंग। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, इकोनॉमिक्स कंप्लीटली ओमिट आउट कर दो, पॉलिटी पे ध्यान दो, हिस्ट्री पे ध्यान दो अपना, ठीक है, एंड इसके अलावा ज्योग्राफी पे ध्यान दो। इसके साथ साथ अपनी साइंस का 10th तक के लेवल के जो क्वेश्चन है, बिकॉज 11th 12th के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो 10th तक के क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट 60% आते हैं, तो उनको भी कवर करके चले जाओ, ओके।
नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉमर्स बैकग्राउंड पीपल, नाउ आपको थोड़े एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे बिकॉज इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप मान के चलो 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, सो दीज क्वेश्चन यू कैन फिक्स आउट वेरी इजिली. इसके अलावा आप अपने साइंस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए बिकॉज ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है. आर्ट्स वाला सब्जेक्ट काफ़ी ईजी रहता है, सो साइंस वाले और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो अपना आर्ट्स वाले जो सेक्शंस हैं उन पे मेजरली फोकस करो, और वो भी कौन से सेक्शंस पे फोकस करो जो इजी हैं और जो 100% आने ही आने हैं. ठीक है, सो एक्ट अ लिटिल स्मार्ट, ओमिट करो सब्जेक्ट्स जो नहीं करने हैं, उनको हटा दो, साइड लाइन कर दो, और सिर्फ उतने टॉपिक्स करो, उतने सब्जेक्ट करो जिसके थ्रू आपके मार्क्स सही तरीके से आ जाए. सो आई गेस आपको फर्स्ट टेक्निक समझ आ गई होगी कि लास्ट 3 मंथ्स है या 2 मंथ्स है, वट एवर इज रिमेनिंग विद यू, तो इस दौरान मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मैं कुछ सब्जेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और जो सब्जेक्ट करूंगा उन्हें बहुत अच्छे से करूंगा. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, from where to read, which topics to read, and how to plan your daily routine. I'm going to help you out with this. Which topics to read, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस के थ्रू बताया, इफ आई एम राइट, isn't it? तो मुझे कैसे पता चला which topics to read? It is through previous year questions. Okay, एक बार जाओ, हर टॉपिक को उठाओ, टेक आउट अ सब्जेक्ट, चाहे आप साइंस उठा लो, चाहे आप पॉलिटी उठा लो, और उसके बाद उसके 5 साल के पेपर लेके बैठो एंड फाइंड आउट विच टॉपिक्स आर बीइंग रिपीटेड इन द एग्जामिनेशन. जैसे फंडामेंटल राइट बार बार रिपीट होगा, प्रेसिडेंट का क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, साइंस में से कुछ सेक्शंस हैं जहां से 100% क्वेश्चन रिपीट होंगे, एंड यू शुड नो दिस. वंस यू सी दिस रेपिटेशन ऑफ टॉपिक्स, टेक इट, मार्क इट आउट कि ये टॉपिक मैं प्रिपेयर करके जाऊंगा एग्जामिनेशन के लिए, मुझे कोई भी बुक कवर टू कवर नहीं पढ़नी है. ओके, सो आप प्रीवियस ईयर कहाँ से देखेंगे? यू कैन गो टू upsc.gov.in, यहाँ पर आप जाएंगे, यू विल फाइंड कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, इन पे क्लिक करना, आपकी डायरेक्टली फाइल ओपन हो जाएगी. गो एंड चेक आउट द क्वेश्चंस. ओके, एंड अगर इतना टाइम आपके पास नहीं है तो वेरी सिंपल थिंग दैट आई एम टेलिंग यू, इन आवर कोर्सेज वी हैव कवर्ड दीज टॉपिक्स. तो जाके आप एक बार टॉपिक्स के नेम चेक कर लेना एंड कवर दीज टॉपिक्स फ्रॉम विच एवर बुक यू आर डूइंग. ओके, आप अगर कोई भी XYZ बुक पढ़ रहे हो, गो चेक दीज टॉपिक्स आउट कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कराए हुए. एज यू कैन सी दैट वर्ल्ड क्लाइमेटिक टाइप्स बहुत सारी है. ओके, मेडिटेरियन क्लाइमेट है आपका, देयर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड, और वहां से क्वेश्चन 100% एग्जामिनेशन में आता है, एंड वी हैव हार्डली कवर्ड इट विद इन 1 hour टाइम, एंड इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे अगर क्वेश्चन आया क्लाइमेट से तो. ओके, सो दीज टॉपिक्स आर क्वाइट एप्ट. आई अंडरस्टैंड यू डोंट हैव दिस मच टाइम, सो यू कैन गो, आई एम गिविंग यू दिस वेरी सिंपल सोल्यूशन. CDS 2021 बैच 4 करके यू कैन फाइंड दिस पर्टिकुलर कोर्स. इसके जाके सिर्फ आप जाके चेक कर लेना कि कौन कौन से हमने टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, बिकॉज हार्डली हर सब्जेक्ट में हम लोगों ने 15, 20, 30 वीडियोज में कवर किया हुआ है, और उसमें टॉपिक्स ऐसे एडेड हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं. सो गो एंड चेक इट आउट. इवन इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, माइक्रो में कौन से टॉपिक्स आते हैं, मैक्रो में बजट, वो सारी वीडियोज एडेड है. नेशनल इनकम डायरेक्टली पूछा जाता है, और बजट, प्लीज गाइज डू इट वेरी नाइसली. व्हाई एम आई सेइंग दिस? यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में. यू विल फाइंड 1 or 2 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम दिस टॉपिक. ओके, नाउ इवन इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटी सेक्शन, यू मस्ट हैव सीन कि लक्ष्मीकांत कितनी बड़ी बुक है. हार्डली 31 वीडियोज़, और वो भी कितने 26 मिनट्स, 23 मिनट्स, 12 मिनट्स की वीडियो है, 13 मिनट की वीडियो है, जिसमें हमने सब कुछ कवर कर दिया है. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि वीडियोज़ के थ्रू चीज़ याद रखना ज़्यादा ईजी होता है एज कंपेयर टू रीडिंग इट. ओके, सो दिस इज द हाई एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट दैट वी प्रोवाइड, एंड यू कैन गो एंड चेक आउट द टॉपिक्स फ्रॉम योर एंड ईजिली डू योर वर्क. ओके, moving on to the next thing, from where to read. Now this is something which is a big problem for a lot of students. We have already discussed कि हमें कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है, that I've already discussed with you. Now the thing is कहाँ से पढ़ना है, that is which books we should go for. Now usually आप डर जाते होंगे that completing 6th to 12th syllabus in 3 months, is it possible? Why am I saying this thing to you? Lot of people suggest NCERT पढ़ लो if you want to clear any UPSC level examination. Now let me tell you one thing, this is the biggest myth that you're living in. NCERT बहुत ज़्यादा important है for sure, लेकिन सारी NCERTs नहीं पढ़नी होती. 6th to 12th is not required. Now if I talk about from where to read, let me tell you one thing what is important. Geography के अंदर 10th
11th एंड 12th एनसीईआरटीज। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी 11th की एनसीईआरटी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वन इज रिलेटेड टू क्लाइमेटोलॉजी एंड एवरीथिंग, एटमॉस्फेयर क्लाइमेटोलॉजी, और एक आपकी रहेगी जो कि इंडिया के लॉट ऑफ डिटेल्स लाइक रिवर्स एंड सॉइल टाइप्स एक्सेट्रा उसको कवर करेंगी। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। 12th की एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ सेक्शंस है जो इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल्स वाले कुछ सेक्शन है 12th वाली एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ज़्यादा सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है 12th एनसीईआरटी से, ओके। एंड 10th में कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि 11th वाली एनसीईआरटी थोड़ा मिस आउट कर रही है, सो वो आप उसको एडअप कर सकते हो, बट इफ यू वांट यू कैन कंप्लीटली स्किप इवन 10th। 11th वाली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है दोनों एनसीईआरटीज, एंड 12th वाली जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ सेक्शंस दैट आर इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज पॉलिटी। गाइज, पॉलिटी में एनसीईआरटी पढ़ना यूजलेस है, एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं आता है, ओके। व्हाट कम्स इन पॉलिटीज, आपने अगर देखा होगा तो एक तो आपकी पूरे साल की बुक इज जस्ट अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट इज योर 12th, जो आपको शायद एसएसबी में काम आएगी, नॉट इन योर प्रिपरेशन फॉर रिटन। आपकी 11th की है, उसमें हार्डली क्या कवर्ड है, जस्ट योर फंडामेंटल राइट्स, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। बहुत ही बेसिक सी बुक है। सो पॉलिटी के लिए देर इज रामबाण, जिसको हम लक्ष्मीकांत कहते हैं, लेकिन इसको आपको कवर टू कवर नहीं पढ़ना। इनमें से कोई भी बुक आपको कवर टू कवर नहीं पढ़नी है। जैसे मैंने आपको बताया, टॉपिक सेलेक्ट करो और पढ़ो, दैट्स इट। और टॉपिक में से भी किस लेवल में क्वेश्चन आते हैं, किस डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। मतलब अब एफकैट में वन लाइनर्स आते हैं, वही मैं हिस्ट्री की बुक पढ़ रही हूँ, लेकिन और अगर मैं बात करूँ सीएपीएफ की, एनडीए की, सीडीएस की, इन डेप्थ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे सेम टॉपिक पे, ठीक है। द क्वेश्चंस दैट दे विल इन्वॉल्व विल हैव लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स, बट दैट डजंट हैपन इन एफकैट। तो हमें ये भी समझना है कि हमें किस डेप्थ में किसी टॉपिक को पढ़ना है, ओके। मूविंग ऑन टू साइंस। साइंस के लिए देखो गाइज, डिपेंड्स कंप्लीटली। अगर साइंस बैकग्राउंड से तो प्लीज 11th 12th को थोड़ा टच करके जाना, अदरवाइज 10th लेवल तक कवर कर लोगे तो ईजी है। 9 10th की एनसीईआरटी मेजरली कवर कर लो तो हो जाएगा, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आप क्या करो, माइक्रो और मैक्रो की जो दो बुक आती हैं पतली पतली सी ऑफ योर एनसीईआरटी, कवर दीज बुक्स अलॉन्ग विद दिस। प्लीज़ अपना न्यूज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, जितनी भी आपके अपडेशंस होते हैं ना न्यूज़पेपर में, डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, योजना रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे मेजर क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ से डेवलप आउट होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री एक काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। आप इसको कितना भी पढ़ लेना, इवन इफ़ यू हैव डन योर मेजर्स इन हिस्ट्री, मतलब आप मास्टर्स भी करके बैठे हो, तो हिस्ट्री के 50% क्वेश्चन भी आज की डेट में अगर आप सॉल्व कर दो तो गनीमत है। बहुत टफ सेक्शन आने लग गया है हिस्ट्री का, ठीक है। सो हिस्ट्री में मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि मॉडर्न पे थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना। हिस्ट्री में भी स्पेसिफिकली वो एरियाज जहाँ पे पेजेंट्स के बारे में बात हो रही है, देयर आर लॉट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स दैट वी टॉक अबाउट, बिकॉज महात्मा गांधी से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। सबको पता है नॉन कोऑपरेशन क्या है, तो आजकल वो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, बट स्टिल यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट। बट आज की डेट में जो मेजर लीडर्स थे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के मेजर लीडर्स रहे हैं, दे आर द मेजर टॉपिक्स दैट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो प्लीज फोकस ऑन दीज थिंग्स एज वेल very nicely, okay? So I guess you got to know from where to read. Now we are going to talk about how to plan the daily schedule. Now talking about the daily schedule, this is one of the toughest part. Why? बिकॉज आपको जो डेली रूटीन है उसमें आपको 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। नाउ व्हाट इज दिस कंसिस्टेंसी? आप अगर स्टार्टिंग में 3 घंटे पढ़ रहे हो ना, इवन अगर आप लास्ट के 2 मंथ्स पढ़ रहे हो या 3 मंथ्स पढ़ रहे हो, ज़्यादा मत टाइम करो, 5-6 आवर्स मत करो, बिकॉज वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा। 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन नहीं पढ़ोगे। आई एम टेलिंग यू, 3 घंटे रखो, अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट भी रखो, अपनी लाइफ में अपना और भी जो काम करते हो उसे भी रखो। 3 घंटे पढ़ाई को दो, इट इज़ मोर देन इनफ, बिलीव मी। 3 घंटे कैसे डिवाइड करोगे? फर्स्ट आवर में आप करोगे कुछ भी नया पढ़ोगे, सेकेंड आवर में आप रिविजन करोगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और थर्ड आवर में आप अपनी क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो करोगे, ठीक है। ये आपका मेन एजेंडा रहना चाहिए डेली रूटीन में। सो द फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी, एंड कंसिस्टेंसी के बाद द सेकेंड थिंग इज वट एवर यू स्टडी शुड बी डिवाइडेड समवट लाइक दिस, और रिविजन इतनी ज़्यादा करो कि जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो वो आपको रिटेन रहे। अगर आप 10 भी क्वेश्चन कर रहे हो तो यू शुड बी श्योर अबाउट इट कि ये क्वेश्चन मुझे 100% आते हैं।
Moving on to the next thing, that is you have to do the subjects that you are very good at. तो जो आपको ये मेन टाइम देना है, that is you have to devote only towards the subject जो आपको मेजरली करने हैं, और उसके साथ साथ वो सब्जेक्ट्स और वो टॉपिक्स जो आपको पता है 100% आने ही आने हैं, राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, आपको अपने जो डेली रूटीन है उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अपना सिलेबस एटलीस्ट एग्जाम से 15 डेज पहले कवर कर लूँ. वाई? बिकॉज लास्ट के 15 डेज मेरा सिर्फ एक काम होना चाहिए, दैट इज़ फुल लेंथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. मतलब फुल लेंथ जो टेस्ट होता है आपको उसको लेके बैठना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. मूविंग ऑन टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ कि आप उस टाइम पे सिर्फ रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें. वाई एम आई सेइंग दिस थिंग टू यू? बिकॉज आप आखिरी के टाइम पे कुछ भी नया पढ़ेंगे, आई गारंटी यू वन थिंग, आप पैनिक मोड में चले जाएंगे, आपको डर लगना शुरू हो जाएगा, आप एग्जामिनेशन में अपना 100% नहीं दे पाएंगे. सो दिस इज द वे यू हैव टू प्लान योर डेली रूटीन. इसके साथ साथ आपको अपनी लाइफ में एक एजेंडाज रखने पड़ेंगे कि इस हफ्ते मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, और उसके बाद एक प्रॉपर रिविजन टेक्निक्स के साथ उसे रिवाइज करोगे. व्हाट शुड बी द रिविजन टेक्निक? कि जो मैंने आज पढ़ा वो मैं कल रिवाइज करूंगा, उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर से रिवाइज करूंगा, और फिर से मैं एक बार एक महीने बाद या जैसे भी है उसकी रिविजन करूंगा 100%. ओके, रिविजन ऐसे नहीं होनी चाहिए कि मैंने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया और उसके बाद जब मैंने 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए मैं पूरी रिवीजन करूंगा. दैट विल नॉट हेल्प. सब कुछ भूल जाओगे. अगर स्टार्टिंग में हिस्ट्री स्टार्ट करी थी तो आखिरी तक हिस्ट्री का एच भी याद नहीं रहेगा आपको, टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज. ठीक है, सिर्फ जो आखिरी में पढ़ा था वही याद रह जाएगा. तो रिविजन शुड बी लाइक, अगर अभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इफ यू आर गोइंग टू रीड पॉलिटी नेक्स्ट, तो पॉलिटी पढ़ते एक बार हिस्ट्री फिर से रिवाइज होनी चाहिए. फिर साइंस पढ़ो तो हिस्ट्री और पॉलिटी, साइंस के इमीडिएटली बाद फिर से रिवाइज करो. ठीक है, दिस शुड बी द मेन थिंग. लाइक आई विल शो यू द टाइम टेबल दैट वी हैव फॉर आवर बैच दैट इज गोइंग टू स्टार्ट राइट अवे. आप ये भी फॉलो कर सकते हो इफ यू विश लाइक. ओके, सो जैसे अगर मैंने पॉलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 25 अगस्त को और 30 अगस्त को अगर मैं उनका टेस्ट ले रही हूँ पॉलिटी 1 और पॉलिटी 2 का, तो वापस से आप देखो टेस्ट 6 आपका पॉलिटी फुल का है. ठीक है, तो वो 12 सितंबर को बच्चों ने फिर से वही सेम चीज़ रिवाइज करके टेस्ट दिया. तो उससे क्या होगा, टेस्ट से अपनी कमियां पता चलती रहेंगी, पहली बात. दूसरी बात, टेस्ट का सबसे अच्छा फायदा ये होता है जो आप चीज गलत करते हो, मतलब द मिस्टेक्स दैट यू कमिट, आप उसको 100% याद रखते हो. सो टेस्ट सीरीज का फायदा सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने आप को एनालाइज कर पा रहे हो, इसके साथ साथ आप अपनी मिस्टेक्स भी याद रखते हो. तीसरी बात, ये एक ऑटोमेटिकली लर्निंग टेक्निक होती है जिसके अंदर आप रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करते हो वट एवर यू हैव रेड. सो दिस इज अ वेरी गुड वे आप टेस्ट परफॉर्म करें अपने. ठीक है, so this is the way you should plan your daily routine. This is the way you should plan your timetable for upcoming 2 to 3 months. This will be quite helpful for you. चाहे आपने preparations अभी start करी है या फिर आपने preparation पहले से start की हुई है, whatever is the case, अगर revision नहीं करी तो exam में कुछ भी याद नहीं रहेगा. Okay, now guys, as I have told you the whole technique, now telling you one more important thing, if you wish, if you want that support from our end कि टॉपिक्स में से भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शंस हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने डेप्थ में पूछा जाता है, अगर आपके पास इतना टाइम अभी नहीं है, you can be the part of our program that we are providing for you, and I guarantee you one thing, if you join this course 40 plus marks is yours, because our students, you can go and check out on Instagram handle of Insight SSB CDS1 2021 की एक बार जाके रिजल्ट चेक करना, you will get to know the students who are not able to clear the examination. इतने अच्छे मार्क्स है इस बार एग्जाम क्लियर किया है, and they say मैम how is it even possible कि इतना कम पढ़ के, पहले तो डाउट होता था कि इतना कम पढ़ के कैसे एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है. सब लोग बोलते हैं कि CDS is too tough, but let me tell you it is possible. अभी बच्चे CAPF का भी एग्जाम दे के आए हैं and they have found out that CDS का जो मटेरियल था that was even so helpful for them in CAPF examination. So I guarantee you one thing, that buy our course and you will get आराम से 40 plus marks. This is my guarantee. Now what are the benefits of using Insight SSB? Insight SSB का फर्स्ट बेनिफिट है कि बहुत ही प्रिसाइज मटेरियल है. ठीक है, वट एवर यू आर गोइंग टू गेट ना, एक्सट्रीमली प्रिसाइज मिलेगा, कुछ भी बकवास कंटेंट नहीं है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम. वी हैव लाइव डाउट सेशन जिसके अंदर आपके कोई भी डाउट्स हैं, यू आर गोइंग टू गेट अ हेल्प आउट ऑफ इट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज टेस्ट आर देयर जो कि आपको एक रेगुलर पुश देते हैं दैट यू विल एक्सेल. ओके, ऑल्सो देयर इज अ कम्युनिटी टू डिस्कस वट एवर इशूज यू आर फेसिंग. तो आप एक बात सोच के देखिए, लाइक माइंडेड पीपल अगर आपके साथ हैं,
even if you feel depressed, even if you have some problems, everybody will help you out in that. ठीक है, सब लोग आपको हेल्प करने के लिए हैं, एजुकेटर्स आर देयर, तो एक माहौल बन जाता है पढ़ने का. व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज इज कोरोना है, कोविड है, यू आर स्टक एट होम, तो एक रेगुलरिटी नहीं बन पाती. बट व्हेन यू सी योर फ्रेंड्स डूइंग सो वेल इन द टेस्ट, व्हेन यू सी दैट एवरीबडी इज वर्किंग सो हार्ड, तो आपके अंदर एक ऑलमोस्ट जोश अपने आप डेवलप हो जाता है कि नो, आई हैव टू डू इट एनी हाउ. ओके, so this is the best part. Also test series मिलने वाली है. You are going to get 24 tests in this particular course. And the best part is कि इतनी सारी जो बुक्स का बर्डन है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो आपको एक जगह सिंगली प्रोवाइडेड है. आपको जितना पढ़ना है सिर्फ उतना प्रोवाइडेड है, एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स. सो उससे अच्छा और क्या हो सकता है. यू कैन रिटेन थिंग्स. आई एम नॉट इवन सेइंग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड नोट्स, वीडियो लेक्चर्स प्रॉपरली जिसमें हर चीज़ एक्सप्लेन्ड है. दैट इज द बेस्ट पार्ट. So basically you can go for this particular course. The course is starting 20th August onwards and we have limited seats for it. I guarantee 40 plus marks. NCERT standard book सब covered है. previous year question को analyze करके बनाया है. subject wise question मिलेंगे. सिर्फ relevant information, इसके अलावा कोई भी book नहीं पढ़नी. I guarantee you this thing. सिर्फ ये करो, that's it. Okay. 24 टेस्ट कवर्ड हैं. जितनी भी करंट अफेयर मैगजीन है वो कवर्ड हैं. वॉट एल्स डू यू नीड. एक सपोर्ट सिस्टम है. एवरीथिंग इज देयर. सो गाइज, आई होप दैट दिस स्ट्रैटेजी वीडियो मस्ट हैव बीन क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू. आपको समझ आ गया होगा कि आखिरी के 3 महीने कैसे प्लान आउट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है. एंड ऑल ऑफ यू who want to do well, you can join this course and I guarantee you कि हम लोग मिलते हैं 20 अगस्त को और इस एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करके दिखाते हैं to each and every one. So guys, all the very best. I wish one thing that everybody who follows Insight SSB and is preparing hard enough, you get through this examination for sure, and I want to see your name in that list and you will do it. All the best guys, keep working hard and keep making me proud.